Let's cut across to NCP Chief Sharad Pawar, who is addressing media right now. The question comes, this happened in the area operation of Mumbai Police. 2, it happened the vehicle which was used by police officer was in the custody of fellow whose assassination has been made. 3, deceased wife has taken the specific name of particular police officer, and when Mr. Commissioner Police met us, these questions were asked to him. And he suggested we will go in depth and we will investigate. But now, when government took conscious decision to shift him from Bombay Commissionerate to the Home Guard, I think then he made such a wild allegation. Prior to shifting him from Bombay Police in 2 or 3 weeks' time, he never mentioned a single thing or he never made any allegation against Home Minister. All these allegations, when action was taken against CP Bombay and he was shifted from there to, as per his thinking, less important department. Now for us, he made the allegations. It is a prerogative of the Chief Minister to take appropriate decision. And CM has full authority to take decision regarding allegations, inquiry about these allegations. So one aspect of allegation is against Home Minister and second allegations are against CP himself. If I ask, I will definitely discuss with CM and I will suggest that this is very important and sensitive case. Allegation is made by police authority of Mumbai against Home Minister, and also there are a series of lapses which was brought to the notice of media by certain sections by Bombay Police, which affect the reputation of Bombay Police too. So I honestly feel there has to be in-depth inquiry. Inquiry should be made by such officer or such a person who enjoy full respect in the police administration and at public at large. I am going to suggest, I don't know my suggestion about the gentleman whom I am going to suggest whether he will accept. I have not discussed with him. But my suggestion to the Chief Minister, he should appoint Julius Ribeiro. Julius Ribeiro, former police chief of Maharashtra, Bombay, and also contributed a lot for Indian police. Mr. Ribero's reputation
is very, very high. And if we accept this responsibility, the truth will come, and definitely public at large will start believing the police and government police particularly. Now if you want to ask anything, certainly you got ready. पवार साहब, क्या सरकार को किसी तरह का खतरा है, क्योंकि बीजेपी ने इसमें अवसर निकाल लिया, आक्रामक है, क्या सरकार को खतरा है? बात ऐसी है कि ये होने के बाद जहाँ तक मुझे मालूम है तो मुख्यमंत्री ये इशू सीरियसली ले रहे थे, मैं जानता था, और इस बारे में जो कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी वो आवश्यकता पर अमल करने की तैयारी उनकी थी। इसी समय हमने ये देखा कि प्रतिपक्ष के नेता दिल्ली में आकर जाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, उन्होंने डिमांड किया। मैं ये समझ सकता हूँ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की ये जिम्मेदारी है और इसलिए उन्होंने इस तरह की डिमांड की होगी, तो मैं इसको कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, ये उनका अधिकार है, ठीक है, उन्होंने किया। मगर जहाँ तक सरकार की स्टेबिलिटी है, सरकार के स्टेबिलिटी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस एंड गवर्नमेंट इज फुल्ली अवेयर कि ऑल दीज एलिगेशन in the form of letter written by former CP. His education has been made by him when he was shifted from important post to unimportant post. पवार सर, अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे? सर, आपने फैसला मुख्यमंत्री को छोड़ दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते हुए जो जांच आपने सजेस्ट की है वो फ्री एंड फेयर होगी और वो अपोजिशन उस बात में एक्सेप्ट करेगा? नहीं, बात ऐसी कि उनका इस्तीफा लेना ये इस बारे में ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इम्पोर्टेंस देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने तय नहीं अभी तक की। पवार साहब बैठक करने वाले हैं दिल्ली में, आप लोग क्या शाम को बैठक करेंगे शिवसेना के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ? नहीं, कोई बैठक नहीं। मुझे मिलने के लिए मेरे स्टेट के पार्टी चीफ और यहाँ के हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता आने वाले हैं। आज शाम को बैठक करेंगे आप लोग साथ? आज या कल सुबह। इस्तीफा मांग रही है बीजेपी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इस्तीफा मांग रही है, कह रही कि इस्तीफा दे दें हम। ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी, इस्तीफा मांगेंगे। सर, आपको लगता है अनिल देशमुख के रहते हुए मतलब जो ये इंक्वायरी है फेयर हो सकता है क्या? क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप है। बात ऐसी है कि मैंने जिस व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया है इंक्वायरी के लिए, इन्होंने इसका स्वीकार किया, तो कोई इनके रास्ते में आ नहीं सकता, सच्चाई सामने आ सकती। सर, इस घटना के बाद आपके सहयोगी जो दल है, चाहे कांग्रेस हो शिवसेना हो, उनका रुख क्या है? जाहिर है बातचीत 24 घंटों में हुई होगी। मैंने किसी से बात नहीं की, सर मैंने शिवसेना से बात नहीं की, मैंने इनसे बात नहीं की। मैंने सीएम साहब से खाली बात की यहाँ आते समय कि इस बारे में हमारा व्यू है, आपको बताएंगे। क्या बातचीत हुई है सर? पवार सर, सीएम साहब के साथ क्या बातचीत हुई है? उद्धव जी के साथ आपकी क्या बातचीत? पवार सर, बात सिर्फ ये बात क्या हुई, इतनी हुई। पवार सर, सवाल है कि रणबीर सिंह इस तरीके का आरोप क्यों लगा रहे हैं सर? क्या ऐसी वजह है कि वो इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? सीधी बात है कि ये उन्होंने कल आरोप लगाए, इससे पहले क्यों नहीं लगाए, ये भी बात आ सकती है सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो पिछले महीने का या कल के 16 तारीख का था, तो 17, 18, 19
ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटाकर होमवर्क को जाना होगा, तब शायद ये बात उन्होंने समझी। इधर भी सुन लीजिए सर, क्या आप चाहेंगे कि कोई तटस्थ एजेंसी, सीबीआई जैसी कोई केंद्रीय एजेंसी इस मामले की जांच करे, क्योंकि आरोप पुलिस के एक बड़े अधिकारी सरकार के एक बड़े मंत्री पर लगा रहे हैं। इसीलिए मैंने जो नाम सजेस्ट किया है इन सभी के ऊपर है। आपको लग रहा है सरकार गिराने की कोशिश हो रही है इन एजेंसियों के माध्यम से, आपका आरोप है? सरकार गिराने की कोशिश होगी या नहीं मुझे मालूम नहीं, सरकार का इस पर कोई असर नहीं होगा ये मुझे मालूम है। ये सरकार को इससे एक डिस्टेबिलिटी तैयार करने की कोशिश हो सकती है, मगर इससे कुछ होगा। पवार सर मेरा सवाल उठाया रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इन व्हाट कैपेसिटी शरद पवार वाज बीइंग ब्रीफ्ड बाय सीपी, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। रविशंकर प्रसाद ने कहा इस लेटर पे ही कि सीपी परमवीर सिंह ने क्यों शरद पवार को ब्रीफ करने की बात की गई, इन व्हाट कैपेसिटी। तो उनको पूछिए ना पवार सर, मेरा सवाल है उद्धव ठाकरे की तरफ से अगर आपको अनिल देशमुख के इस्तीफा लेने की बात या हटाने का प्रस्ताव आता है तो आप तैयार होंगे? सिंपल ये बात है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर। विल द पार्टी टेक इट्स ओन डिसीजन? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इस बारे में सीएम साहब का सलाह हम जरूर लेंगे, हमारे पार्टी चीफ स्टेट के उनका सलाह लेंगे, हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता इनकी सलाह देंगे, और जो कुछ कहना है देशमुख जी को वो भी इस बारे में उनका सुनना ये भी हमारा फर्ज है। और ये सब करने के बाद आगे क्या करना हम मिलकर तय करेंगे, कल तक करेंगे। सर, इस कंट्रोवर्सी में आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार बदनाम हुई है, गंभीर आरोप लगे, कहीं ना कहीं एक सवाल उठ गया है सरकार के कामकाज के तरीके पर? नहीं, बात ऐसी है कि ये डेलीबरेटली किया है, ये कैसे किया इस बारे में मैं कोई अभी भाष्य नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये बात साफ है कि जो एलिगेशन किए हैं इससे पहले क्यों नहीं किया, इससे पहले क्यों नहीं बात की है? अभी क्या वादे जांच परमवीर सिंह तक जाएगी? क्या वादे की जांच परमवीर सिंह तक जाएगी, इसलिए परमवीर सिंह ने ऐसे आरोप किए? आपको क्या लगता है ये पूरा मामला देखते हुए वादे की जांच जाएगी परमवीर सिंह तक? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये मुझे बताया गया कि वादे को रीइंस्टेट करने में कुछ इनिशिएटिव इसमें जिन लोगों ने लिए, इसमें एक सीपी का नाम है। वहाँ जो कमेटी थी, ये कमेटी फेल कर रहे थे एक सीट, तो 16 साल के बाद वादे को सर्विस में लाने में कुछ न कुछ इसमें हिस्सा उनका है, और आने के बाद उनको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सेंसिटिव जॉब दिया, वो भी काम उनसे हुआ है। Have you consulted with the Chief Minister on Julio Rebrio? You have suggested that Julio Rebrio is the name. Have you consulted No, I that have with the not Chief Minister? consulted either CM or Rebrio. Just now I suggested. पवार साहब, आपसे अनिल देशमुख 2 दिन पहले दिल्ली में जब घर पे मिले थे तो आपने उनको ये कहा था कि कुछ शिकायतें आपकी आ रही हैं, क्या ऐसे कहा था? आपके पास कुछ शिकायतें आ रही हैं? ऐसे कहा था? खबरें हैं सर। कभी मुझे मालूम नहीं। क्या शिकायतें मिल रही थी पहले परमवीर से पहले भी आपको? परमवीर साहब ने कुछ कहा था इसके बारे में, ये बात सच है, बाकी किसी ने नहीं कहा। पवार साहब, सर आप कह रहे हैं कि परमवीर जिम्मेदार हैं वाजे को वापस सर्विस में लाने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री के पास कोई फाइल नहीं पहुंचती? गृह मंत्री के नॉलेज में, सर सुन लीजिए, गृह मंत्री के नॉलेज में क्या सवाल नहीं होता? सवाल यह भी है क्योंकि शिव सैनिक थे, वाजे शिवसेना में थे, नेता विपक्ष ने आरोप लगाया है कि खुद उद्धव ठाकरे ने उनको वापस सर्विस में लेने के लिए पैरवी की थी, वकालत की थी। जहाँ तक मुझे बताया गया इसमें गवर्नमेंट में, यानी आइदर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनका उनको रीइंस्टेट करने में कोई रोल नहीं है। तो फिर उनका रोल क्या है? क्या गृह मंत्री फाइलें नहीं देखते? उनका रोल क्या है फिर? गृह मंत्री सब इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट करता है। पवार साहब, ये जो घटना घटी है
लेटर 5 साल सरकार चल जाएगी महाराष्ट्र में। मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखाई पवार साहब, जिस प्रकार से परमवीर सिंह ने ये लेटर लिखने की घटना घटी है, क्या आपको लगता है कुछ राजनीतिक हवा उसको मिली है और उसके चलते परमवीर सिंह ने ये लेटर लिखा है? मालूम नहीं, मेरे पास कोई इस बात का सबूत नहीं है, मगर मैंने सुना दिल्ली में आकर गए थे, जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ये भी दिल्ली में आकर गए थे, कुछ लोगों से बात की थी, उनका वो अधिकार है, मैं नाम नहीं कह सकता। और इसके बाद बार वहाँ एलिगेशन शुरू हो गई। पवार साहब, ये भले कहा जाए कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन दबी जुबान या खुली जुबान ये कहते हैं कि सारी पावर पवार साहब के पास है, जो दिल्ली से फैसला लेते हैं। पवार साहब ने क्या फैसला लिया है कि पवार साहब सारे फैसले लेते हैं महाराष्ट्र के? आपका फैसला क्या है अनिल देशमुख को लेकर? मुझे कोई अधिकार नहीं, मैं कुछ फैसला लेता नहीं, पूछे तो सलाह देता है, नहीं पूछे तो नहीं देता। पवार साहब, आपने भी महाराष्ट्र का नेतृत्व किया है, 100 करोड़ रुपए हर महीने की उगाही का, क्या कभी पहले आपने सुना? और क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये ऐसा आरोप लग रहा है तो उसमें सीपी की कोई भूमिका नहीं हो? किसी सीनियर ऑफिसर एक ऑफिसर को पूछेंगे, वो हंसेंगे 100 करोड़ हर महीने की बात कहने के बाद। तो कितने मिलते हैं सर? मालूम नहीं आपका क्या एसोसिएशन है, ये कलेक्शन में आपका कोई इंस्टॉलमेंट होगा, कोई एसोसिएशन होगा तो आप मुझे इंफॉर्मेशन दे दो। पवार साहब, पहले सचिन वाजे को शिवसेना से लिंक किया जा रहा था, और परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी उसमें अनिल देशमुख का नाम ले लिया। ऐसी स्थिति क्यों बन रही कि बार बार घूम फिर के सरकार के ऊपर ही सब कुछ आ रहा है? बात ऐसी है कि जो सीपी के बारे में कुछ कदम उठाए, शायद उनको पसंद नहीं होगी, शायद दुखी होगी, और ये जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बारे में डाइवर्शन की क्या चीजें होती। सर आपने का भी एंगल है, सर आईपीएल बेटिंग का भी एंगल है सर उसमें। सर आपने कहा अनिल देशमुख के जो रेजिग्नेशन है उसका भी एक ऑल्टरनेटिव ओपन है, क्या क्या ऑप्शन है सर? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो पाएगी जब तक होम मिनिस्टर अनिल देशमुख रहेंगे, इस पे क्या कहेंगे? ये मैंने कहा है कि हम जिस व्यक्ति का नाम दे रहे हैं वो इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, इसमें हमारा भरोसा है। एक, जहाँ तक मेरे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, वहाँ तक मेरे लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता, इन सबों के साथ हम कल बैठकर बात कर सकते हैं। कोई भी अल्टरनेटिव मुझे मालूम नहीं, जो कुछ निकलेगा उस लाइन पर हम आगे जा सकते हैं। सर दो प्रश्न मराठी पवार साहब, वो समझ में नहीं आता क्या परमवीर आप करेंगे? परमवीर भी दिल्ली आकर गए थे और इनसे देवेंद्र फडणवीस से भी उस मुलाकात हुई इस आरोप लगाने के पहले। क्या आप ये कह रहे हैं कि परमवीर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उसके पहले उनकी अपोजिशन के नेताओं से और जो फडणवीस और उनकी मुलाकात हुई थी उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं? बात ऐसी है कि उन्होंने कई लोगों के साथ बात की होगी, मेरे पास कोई खास सबूत नहीं है, मगर मैं ये समझ सकता हूँ कि प्रतिपक्ष के नेता ने इसमें कुछ इल्जाम लगाए तो उनका फर्ज है, इनका अधिकार है, इसे हम सीरियसली लेते हैं। सर देशमुख पे फैसला कब तक हो जाएगा सर? कब तक फैसला हो जाएगा देशमुख पे? मुझे लगता है कल या परसों हम बैठेंगे, कल ही बैठेंगे, कल डिसाइड कर देंगे कल। हाँ, क्योंकि आने के बाद बैठेंगे। सर एक प्रश्न मराठी कर रहा है सर कि इसमें बेटिंग का भी एंगल है और उसमें मंत्री और पुलिस अफसर भी इसमें इन्वॉल्व है। नीतीश रानी ने भी अभी एक ट्वीट किया है जिसमें पुलिस अफसर इन्वॉल्व है बड़े लेवल पे, वजह के मार्फत ये पूरा किया जा रहा था। क्या बेटिंग का भी इसमें एंगल है? ये मुझे मालूम नहीं, मैंने सुना नहीं बेटिंग का। इसमें दो इंची जो है, एक सीपी ने किए हुए एलिगेशन एंड बी ये एमपी का सुसाइड, देलकर की आत्महत्या, ये दो इश्यूज इसमें है। सीपी ने अपने लेटर में लिखा है कि देलकर के इशू पर मेरे ऊपर दबाव लाया कि यहाँ केस FIR करे। भाई 7 बार में एंट्री होता है जिसकी आत्महत्या मुंबई शहर में होती है, तो इसका कॉग्निजेंस पुलिस को लेना पड़ता है। नहीं लेना ये ठीक नहीं है, और इस बारे में कुछ कहा होगा ये, तो इसमें मुझे कोई गलती लगती है। सर जब परमवीर आपसे मिले थे क्या क्या बातें हुई थी आप दोनों के बीच में? उससे उन्होंने बताया कि भाई मुझे जो कुछ शिफ्टिंग की बात हो रही है, मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। अनिल देशमुख बारे कुछ भी चर्चा नहीं की उन्होंने आपसे? परमवीर जब आपसे मिले तो उन्होंने ये बात कही कि मेरे डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, इतना कहा था। Sir, is it putting a bad reputation to the party
or that the Home Minister has been given an allegation? इसमें चर्चा ही क्या, ये बाहर आने के बाद होगा, आज नहीं. And do you think that he should withdraw from the party, from the post till the time his... I have already said, I have already decided. Sir, मराठी प्रश्न घ्याल का नाही. Thank you, Chief. Okay. Thank you so much. सर आज अगर कोई मीटिंग नहीं तो हम लोग जाए. सर कोई मीटिंग है क्या शाम को? कोई अगर मीटिंग नहीं हो तो हम लोग जाए. हाँ जाइए. है क्या सर आज? सर शाम को है मीटिंग, बता दीजिए. तो कमला पोस्टिंग है. मीटिंग होगी तो रुकना पड़ेगा सर, रात के 8 बजे तक. हाँ आज तो नहीं, अभी छुट्टी है. आज नहीं होगी ना, चलो आज छुट्टी ले रहे हैं ना संडे. अभी देखिए, आपका संडे हम फोन नहीं कर सकते. आज संजय राउत आएंगे मिलने. छुट्टी है ना सर? नहीं, आपका संडे, आज संडे है ना. आज संडे है सर, आपका है. संडे हम फोन नहीं कर सकते. थैंक यू सर. सर संजय राउत आएंगे क्या मिलने सर शाम को? यहाँ है. आने वाले शाम को आएंगे क्या, ऐसी चर्चा है? तो मेरी इंफॉर्मेशन नासिक में है. अच्छा. और सिग्नल में. ओके. तो सर अब आज शाम को जो 7 बजे मीटिंग होने वाली थी एनसीपी नेताओं से, आपकी स्थानीय नेताओं से महाराष्ट्र, तो वो अब कल होगी? मालूम नहीं कब पहुँचेंगे तब. कल पहुँचेंगे. मेरी इंफॉर्मेशन है कि 7 या 8 बजे पूर्णा की फ्लाइट पकड़ने की संभावना है. 7 या 8 पकड़ेंगे तो 10-11 बजे आएंगे, तो कल हो सकती है. तो आज 7 बजे नहीं है कोई बैठक? आज 7 बजे नहीं है. आज कोई बैठक अभी शाम को 5 बजे संजय राउत से भी बैठक नहीं है. नहीं है वो. संजय राउत मालूम नहीं, वो नासिक में है. वो आए तो मैं तो मिलूंगा, मेरे कहीं गए. उनसे बात हुई थी फोन पे? संजय राउत से कुछ बात हुई आपकी परमवीर वाले मामले में? That was NCP Supremo Sharad Pawar making his stand clear on this contentious issue of the letter that was written by Parambir Singh, while he said that the CM of the state is free to act on any of the ministers. He also questioned the motive behind this particular letter and also asked why Parambir Singh took so long to go public with all his grievances and all the wrongdoings that he's claiming was underway in the Maharashtra government. And he also asked for a fair probe by an impeccable team, and he also suggested a name that former Mumbai CP Julio Ribeiro should head the investigation, and this is the suggestion which has been given by Sharad Pawar. He also said that it could be a conspiracy by the BJP to destabilize the government. However, they won't succeed. Mayuresh is with us to give more details on this. So, Mayuresh, a very big and important statement there by NCP Supremo. While on one hand, he's saying that guilty should be punished and probe should be conducted and CM is free to act at his own will, he's also questioning Parambir Singh and his motives. Absolutely. If you see this press conference, there are 3-4 major takeaways. Number one, that Pawar has also admitted that the allegations leveled against Anil Deshmukh and Parambir Singh are really serious. And CM has taken this cognizance of this. Also, number two is that he has agreed that due to this war of words or the allegation, the image of the government as well as the police has got tarnished. So it has affected the image of the police and Maharashtra government. Number three, if we talk about, he clearly said that a fair probe should happen, and a senior officer like Julio Ribeiro should basically lead this probe, or he should head this entire probe. So that is there. But number 5 is clearly said that the decision about taking a resignation of Anil Deshmukh or not, that CM has to decide, because CM is the Uddhav Thackeray, being a CM, he's the head of the cabinet and he should take the decision. So he has put ball in the court of Uddhav Thackeray to take to decide whether he wants Anil Deshmukh to continue or he wants Anil Deshmukh to quit. And number 5, which he clearly said that tomorrow the NCP leaders from Maharashtra, especially Ajit Pawar and Jayant Patil, who's the state president, they had they are on the way to Delhi. So tomorrow there is a meeting which will take place. In that meeting they will decide. Also today Sanjay Raut is also expected to meet Sharad Pawar. So he will also brief Sharad Pawar about the entire scenario. And after that, tomorrow there will be kind of some decision regarding Anil Deshmukh, Sharad Pawar and other party leaders will take. So that for that we have to wait. But yes,
Pawar has made it clear that if you want to probe, yes, you should probe, but there has to be some person who has got a tremendous track record, and he has suggested name of a senior IPS officer and retired IPS officer, Julio Ribeiro. And further, he has said that because of these allegations leveled against Mumbai police officials or Mumbai police and minister, the image of government and Mumbai police has got affected. Back to you. Right. Thank you, Mayuresh, for sharing all those details.